Okay, hello everyone. Can you see me and hear me? Am I audible and visible to all of you? Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. तुम लोग blackboard देख पा रहे हो? Can you all see the blackboard that I have shared with you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Over there. देखो आज हम ये लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं और उसमें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म शुड possess. So these are things that we have already learned in the last class. Today we'll focus on taxonomy. Okay, now what is taxonomy? Let's have a look. Please है जो पूरा living world है ना इसमें बहुत type of species है. कितने species हैं? There are nearly 1.7 to 1.8 million 1.7 to 1.8 million species of living organisms have been studied and they have been named also. ठीक है? और इनमें से approximately 1.2 million सिर्फ animals हैं. So always remember that animal diversity is greater than plant diversity in this nature. Right? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम कुछ ये हो रहा है कि हर एनिमल को या हर प्लांट को अगर मुझे अलग अलग से नोमेनक्लेचर करना है या फिर अगर मुझे हर एनिमल को हर जगह पर उसका अलग अलग नाम है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको. सपोज बहुत कॉमन एग्जांपल है. जब हम बंगाली लोग जब लेडीज फिंगर खाते हैं तो उसको हम कहते हैं ढैरोश. क्या कहते हैं? ढैरोश. हिंदी पीपल दे कॉल इट बुखरा. ठीक है. और फिर कोई कोई सॉरी दे कॉल इट भिंडी and then some people call it okra and then it's also known as lady's finger. So you're understanding एक एक जगह पर एक एक उसका नाम है. The same thing. Okay, so the Hindi people if I say तुमने ढैरोश बनाया घर पे they'll not understand. Right. So the thing is ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है. ये सिर्फ कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल की बात हो रही है. So every state when you go different name is given to every plant species, everything that's available, different name is given. But that's very difficult. अगर ऐसा different names अगर उसको दिया जाता है then उसका identification becomes very difficult. So in order to ease out the identification there are a few steps that needs to be performed. Okay. So first what you need to do is that you need to have a proper nomenclature of every living organism. पहले तो तुम्हें एक nomenclature की जरूरत पड़ेगी. A nomenclature which is valid everywhere in the world. सिर्फ कोलकाता में उसका वैलिडिटी नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, एनीवेयर यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो नोमेनक्लेचर है वही वैलिड रहेगा. राइट. उसको उसी नाम से हम हर जगह पर पहचान सकते हैं. So that is known as the nomenclature, scientific nomenclature. So every organism is being provided with a scientific nomenclature. अब nomenclature करने से पहले तुम एक organism का nomenclature करोगे, उससे पहले जिस चीज की यहाँ पर जरूरत है वो है कि उस organism को पहले तुम्हें identify करना पड़ेगा. So before you start with the nomenclature, first you need to identify the organism, then you need to describe the organism correctly. That what are the characteristics that the organism has, and then finally after this is done then you can proceed with the nomenclature. ठीक है. अब यहाँ पर एक चीज है nomenclature मतलब identify करो, describe करो, उसका एक नाम दो, अच्छी बात है. And there is something which is known as classification of the organism. So very important is you need to classify the organisms. जितने 1.2 million species है, 1.7 of animals and around 0.5 million plant species है, सबको अलग अलग से तुम याद नहीं रख पाओगे. सारे organisms के characteristics तुम अलग अलग से पहचान नहीं पाओगे. So what you need to do is that you need to categorize. So that's also very important. So the science which does all of this is known as taxonomy. So taxonomy में पहली बात, there are a few steps in taxonomy. Let's learn that. What is taxonomy? Taxonomy, I'll talk about the definition. But before I talk about the definition, let's talk about the steps in taxonomy. पहला जो step है taxonomy में वो है characterization. So first what you need to do is that organism को ले लो, लेने के बाद उसमें क्या क्या characteristics है. What type of characteristics am I talking about? Number one, the morphological characteristics, जो
आंखों से देखने से जो समझ में आता है. So the morphological characteristics you need to know and the physiological, some physiological characteristics, but mainly the morphological characteristics. होने के बाद हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ स्पेशल आइडेंटिफाइबल फीचर होता है. So next is identification. So the first step is characterization. The next step is identification. होने के बाद जिनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स तुमने आइडेंटिफाई किया है उनको एक साथ एक जगह पर एक टैक्सॉन के अंदर क्लासिफाई करो. So what is a taxon? It is a group. Taxon is a group where the organisms with similar characteristics, similar identifiable characteristics are being placed. So इसको हम कहेंगे. So the third step is classification into taxons. Next step is final. ये सब होने के बाद end में आ जाएगा तुम्हारा nomenclature. So I repeat myself. First of all, the organism, you need to describe the morphological characteristics of the organism. That is step number 1, which is known as characterization. फिर क्या करोगे? उसके बाद उसको मुझे एक टैक्सॉन के अंदर प्लेस करना है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हर ऑर्गेनिज्म का स्पेशल स्पेशल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. Once you are clear with this, so you identify the special characteristics of every organism. And once based on the similar characteristics, you place the organism under a special group, which is known as taxon, और इस process को हम कहते हैं classification. And finally, once the organism has been placed under its respective taxon, the last step is to determine or to provide it with a correct name. ठीक है, और इसको हम कहेंगे nomenclature. Is this clear? The science which deals with all of these, ये जो 4 steps है, ये 4 steps जिस चीज में इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं taxonomy. Clear everyone? Yes, sir. Okay. If you're having any doubt in any of the thing that I'm teaching you, you stop me and I'll explain again. Okay. So और जो साइंटिस्ट्स जो ये टैक्सोनॉमी को लेके काम करते हैं उनको बोला जाता है टैक्सोनॉमिस्ट्स. अब यहाँ पर और एक टर्म इवॉल्व आउट होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टम. एक है टैक्सोनॉमी, another one is systematics. Another one is systematics. What is systematics? There is a difference between taxonomy and systematics. मैं फिर से लिखता हूँ. हमने दो चीजें पढ़े हैं यहाँ पर. One is taxonomy. So what is taxonomy? Taxonomy, taxis दो वर्ड से आता है. एक है taxis और दूसरा है nomi या nomos. Nomos means law, Latin. I'm talking, all of these are Latin words. और taxis का मतलब होता है तुम्हारा arrangement. So taxonomy means the laws which help in arrangement of the organism. Done. What is systematics? Systematics ये हो जाता है तुम्हारा. It comes again from two words. It comes from the word systema. और systema का मतलब होता है order या फिर sequence. टैक्सोनॉमी करने के लिए जिस सीक्वेंस का यूटिलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स. सो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कितना डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करो और फिर कंपेयर करो. एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करो. कंपेयर क्यों करोगे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें यह भी जानना पड़ेगा व्हाट इज द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है. So these are things that are involved in systematics. So systematics टैक्सोनॉमी का मीनिंग फिर से बताइए तो. Yes, Shurjavan. Shurjavan, the meaning of taxonomy is tax. It comes from two words, taxis and nomos. That means the law of arrangement. Can someone tell me? अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि ये जो law of arrangement है इसमें कौन से steps involved है? बताओ मुझे. 4 steps एक के बाद एक involved है. What are these? So character, identification, Yes.
Taxon and Classification and nomenclature. taxon. yes, Nomenclature. nomenclature. तो ये चार स्टेप्स मिलके ये जो लॉज, सो देयर आर, हर स्टेप में कुछ ना कुछ लॉज सेटअप होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज टैक्सोनॉमी, द लॉ ऑफ अरेंजमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। एंड देन नो, ये टैक्सोनॉमी होने के बाद एक ऑर्गेनिज्म तुम्हारे पास है, दूसरा भी है। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, तुम उसमें उसको एनालाइज करोगे, दोनों में कितना डाइवर्सिफिकेशन है वो एनालाइज करोगे, और करने के बाद दोनों को कंपेयर करोगे। आई मीन पहले कंपेयर करके उनमें डाइवर्सिटी का एक रिलेशनशिप निकालोगे, और फिर क्या बोलोगे कि ऐसे 10, सपोज 10 ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे पास है, एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू कंपेयर ऑल द 10 ऑर्गेनिजम्स, एंड यू आर गोइंग टू हैव एन आइडिया अबाउट who has evolved from whom, कौन सा पहले आया था, उसके वहां से कौन आया था, फिर वहां से कौन आया, so which one is more developed, which one is less developed. So the systemic arrangement, the systematic arrangement, that means the sequence or the order of arrangement is being talked about by systematics. That is a different science field of study. Have you understood, everyone? The difference समझ में आया कि नहीं? Have you understood the difference between taxonomy and systematics? Yes, sir. Okay, okay, let us continue. So अगर तुम मुझे definition बहुत simple way में अगर मुझसे पूछो, if you ask me to define, so taxonomy, I can say taxonomy is the study of principles and the procedures that are required for classification. And what is systematics? Systematics is the study of the organisms. You will compare it, you will diversify it, and you will try to find out the evolutionary relationship. And these are the laws involved in classification. Okay, this is the basic difference. जो scientists taxonomy को लेके काम करते हैं, they are known as taxonomists, और systematics लेके जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं systematists. Okay. अच्छा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा मैं ये जो क्लासिफिकेशन उसका थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। शायद से ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बहुत टाइम में इधर उधर से एक आध क्वेश्चन चला आता है, सो आई वांट यू टू नो। ठीक है, सो जब पूरा क्लासिफिकेशन एंड एवरीथिंग स्टार्ट हो रहा था, देन इट ऑल स्टार्टेड इन ग्रीस. And in Greece, there was someone who was known as Hippocrates. And Hippocrates was known as the father of medicine. He was known as the father of medicine. And then there was someone who was known as the father of zoology. Does anyone know who is known as the father of zoology? ये शायद से तुम लोगों ने पढ़ा है in younger classes. A very common name, huh? He's actually also known as the father of biology. Very common name. Let's see if someone knows. Aristotle. Yes, good. किसने कहा? Monon. Monon, how do you pronounce your name? Hello? Can you hear me? I cannot hear you. Hello, sir. Yes, Monon, how do you pronounce your name? Yes, sir. सर मैं मिदनापुर से हूँ, सो Okay. मुझे ये बेंगली में बोलना पड़ता है। কি বলো? কি নামটাকে কি করে উচ্চারণ করো বলো? মনন? ওই যে মনন মাইতি। মনন। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটাই জানতে চাইছি। মনন, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে মনন বলে ডাকবো। আমি তো মানান বললাম, তাই তো ভুল হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, তাই জন্য ঠিক আছে। ওকে, ঠিক আছে, I'll call you মনন। ठीक है, মনন करेक्ट है। Aristotle is known as the father of zoology, is also known as the father of biology. তুমি জানো আমার দেশের বাড়িও মেদিনীপুরে, আমার দেশের বাড়ি হলো ঘাটালে।
ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমি থাকি না ঘাটালে, আই স্টে ইন সোনারপুর, বাট আমার দেশের বাড়ি ঘাটালে। Where do you stay? তুমি কোথায়, তোমার বাড়ি কোথায়? কোনটাই কোনটাই কোনটাই? ওকে ওকে। Anyway, chalo, let's come back. So Hippocrates is known as the father of medicine. Aristotle is known as the father of zoology. He's also known as the father of biology. And he had classified, क्यों zoology का father क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने प्लांट, तब जितने भी एनिमल्स थे, एनिमल्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था इन्होंने। व्हाट आर द 4 ग्रुप्स? ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सर शायद से जब तुम लोग वो चैप्टर पढ़ोगे, क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तब तुम लोग को इजी भी हो जाएगा। ये चीजें वहां पर भी थोड़ा थोड़ा है। तो he had classified the organisms into 4 major groups. One is known as birds, another one is insects, another one is whales, another one is fishes. तो तब जितने भी एनिमल्स थे उन सारे एनिमल्स को उन्होंने 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, whales and fishes. Okay. अच्छा, उसके बाद then he was known as the father of zoology. So there must be someone who is known as the father of botany also. Father of botany, ये शायद तुम्हें नहीं पता, Theophrastus. So Theophrastus was known as the father of botany. उन्होंने क्या किया था, जितने भी तब प्लांट्स थे उनको उन्होंने डिवाइड किया था। एंड he had given the description of 480 480 प्लांट्स को उन्होंने कैरेक्टराइज किया था, और he had given names to them. He called it Historia Plantarum. थोड़ा बोरिंग लग सकता है तुम लोगों को, बट दिस इज द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. आई कैन नॉट मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. ओके, आई विल ट्राई टू, बट आई कांट. तो यहाँ पर भी इन्होंने, ये तुम लोगों को पता है कि थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था. दिस यू पीपल नो, और हमेशा से पढ़ते आ रहे हो. बताओ, व्हाट आर द 4 ग्रुप्स? जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं? टेल मी. अरे, अकॉर्डिंग टू द, मैं हिंट देता हूं, अकॉर्डिंग टू द साइज, छोटा है, बड़ा है, ग्रास लैंड में है. आई क्लासिफाई प्लांट्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज. बहुत कॉमन है ये, एवरीवन नोज, एंड यू पीपल हैव बीन लर्निंग दिस फ्रॉम, आई थिंक 1 2 3 4 से पढ़ रहे हो ये. एनीवन? अच्छा, एक बड़े प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्री. हाँ, ट्री. सो वन इज ट्री, अनदर वन विल बी, अब बोलो, उससे छोटा प्लांट. प्लांट. क्या, वो भी तो एक प्लांट में ही आता है. प्लांट नहीं, Sir, shops. shrubs. Yes, shrubs. Then फिर हर्ब्स. herbs. Yes. और shrubs और herbs के बीच में एक कैटेगरी उन्होंने दिया था, which are known as under shrubs. ये चीज उन्होंने बताया था, थियोफ्रास्टस ने बताया था. Trees, shrubs, herbs, and between shrubs and herbs you have undershrubs. Okay, so this was the classification that Theophrastus has provided us with. Okay, उसके बाद okay, you, I think इतना जानना, I think तुम लोगों के लिए enough है. And then when I'm talking about the science of classification, a very important name comes up, and that is Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus, he was a Swedish, botanist. I think not a botanist, he was a naturalist. And उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था Species Plantarum. उस बुक का नाम था Species Plantarum. ठीक है, और वहां पर उन्होंने
करीब 1753 प्लांट्स के बारे में डिटेल्स में बात किया था. एंड ही आल्सो हैड अनदर बुक व्हिच वाज नोन एज सिस्टेमा. इस बुक के बारे में तो बहुत जन शायद से यू पीपल नो. इट वाज नोन एज द सिस्टेमा नेचुरी. और इसमें अप्रोक्सीमेटली 4200 एनिमल स्पीसीज के बारे में बात किया गया था. सो व्हाट डिड आई से? हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? लेट्स रिवाइज. Aristotle. Aristotle. Who is the father of zoology? Cleopatrus. Hey, ulta hua. Hippocrates is the father of medicine. Aristotle is the father of zoology. Then Theophrastus is the father of botany. Okay. And Carolus Linus ने he gave us a book on plants. Plants के ऊपर उन्होंने एक book दिया था. Plants को classify किया था. And he had classified around 5,900 species total. Okay. And in the year 1753 he had this was the year. And what he had done was he had classified around 5,900 plant species. Uska naam tha species Plantarum. Or he had also classified and he had talked about 4,200 different species of animals, which was known as the Systema. The book was known as Systema Naturae. और उन्होंने और एक काम किया था. यहीं पर उनका काम स्टॉप नहीं हुआ था. What he had also done was that he had also classified the animals and plants based on their sexual characteristics. So he had also classified the plants and animals based on their sexual characteristics. और उन्होंने he had introduced a new system of nomenclature जिसको हम कहते हैं binomial nomenclature. This is very important. यहाँ से हम वापस फिर से सिलेबस में चले आ रहे हैं. So he was the one who had introduced a new style of naming organisms. और ये जो binomial nomenclature है, this binomial nomenclature is accepted worldwide. हर जगह पर उस प्लांट का नाम या एनिमल का नाम यही होगा. इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उसका जो नाम है वही होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हर प्लांट का जो स्पेसिफिक नाम है उसको हम कहेंगे द साइंटिफिक नेम. तो जिस भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तुम चले जाओ, उस प्लांट या एनिमल का नाम, उस प्लांट या एनिमल का साइंटिफिक नेम विल रिमेन द सेम. कभी कहीं पर भी ये चेंज नहीं होगा. Or it consists of two parts. The scientific name, it consists of two parts. What are the two parts? The first part, it is known as the genus. The first part is known as the genus, and the second part is known as the species, or it is also known as the specific epithet. ये चीजें क्या है? I'll come to that. I'll come to what is the genus, what is the species. I'll talk about that. अच्छा. तो पहले बात करते हैं कि ये जो मैंने जीनस के बारे में बोला या स्पीसीज के बारे में बोला, ये चीजें क्या हैं. तो देखो ये जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि हर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो द मेन एम ऑफ द टैक्सोनॉमी इज टू क्रिएट अ प्रॉपर हायरार्की. प्रॉपर एक हायरार्की क्रिएट किया जाता है. So that means there is a specific systematic framework. What is the hierarchy? It is the systematic framework. So मतलब बता रहा हूं. जैसे पहले रहता है हमारा स्पीसीज, उसके ऊपर रहता है कितने कितने हायरार्किकल टैक्सॉन्स हैं वो पहले मैं नेम बता देता हूं. हाँ, let me talk about the taxons first and then I'll talk about किसमें क्या बिलोंग करता है. Then you have the genus. जीनस के ऊपर है फैमिली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है. उसके ऊपर है ऑर्डर, उसके ऊपर है क्लास, उसके ऊपर है फाइलम. जस्ट अ सेकंड प्लीज, लेट मी रब दिस.
फाइलम के यहाँ यहीं पर रहता है डिविजन। प्लांट्स में होता है डिविजन, एनिमल्स में होता है फाइलम, उसके ऊपर होता है किंगडम। तो बेसिकली जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स थे, सारे ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी and species is the lowest category. Remember this. Kingdom is the highest category, species is the lowest category. ठीक है? अब species क्या है? What is the species? I'll come to that. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पीसीज, उसके बाद जितने भी सिमिलर स्पीसीज हैं मिलके जीनस बनाते हैं, जितने भी सिमिलर जीनस है मिलके फैमिली बनाते हैं, सिमिलर फैमिली मिलके ऑर्डर बनाते हैं, सिमिलर ऑर्डर मिलके क्लास, सिमिलर क्लासेस मिलके फाइलम्स, और सिमिलर फाइलम्स मिलके। Okay, now let's study each of these one by one. पहले हम will talk about species. तो species it is very important है, ये जो species है, और याद रखने लायक है कि species सबसे नीचे, you know, it is the basic unit. ये question बहुत बार आया है, what is the basic unit of taxonomy? So species is the basic unit. So species, it occupies the lowest position, and it is the basic unit of taxonomy. It is the basic unit of evolution also. It is the basic unit of evolution. हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करके फिर ग्रेजुअली ऊपर गया है, और टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहीं से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ गया है। सो स्पीसीज की को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, व्हाट इज अ स्पीसीज, लेट्स सी व्हाट इज अ स्पीसीज। So species is a dynamic, comma, genetically distinct. एक सेम स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सिमिलर होते हैं, और अलग अलग स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनका जेनेटिकली भी उनमें डिफरेंस होता है। ठीक है? सो डायनामिक है और जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनमें कुछ कुछ जो सेम स्पीसीज में आते हैं वो इंटरब्रीड कर पाते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं टू गिव ऑफस्प्रिंग्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो एक्चुअली डार्विन ने इसको डिफाइन किया था कि अ ग्रुप ऑफ potentially interbreeding population which is reproductively isolated. मतलब समझा रहा हूं, सपोज ये है सपोज ये है स्पीसीज 1, ये है स्पीसीज 2। स्पीसीज 1 में 4 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये 3 अपने आप में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और ये 5 भी अपने आप में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑफ कोर्स फॉर रिप्रोडक्शन यू नीड अ मेल एंड अ फीमेल, वो कैटेगरी मैं कंसीडर कर रहा हूं कि हाँ है। सो these organisms which can reproduce among each other, which can interbreed, and these organisms which can interbreed, लेकिन ये और ये एक साथ कभी भी interbreed नहीं कर पाएंगे, so they are reproductively isolated. Pink and the red one are reproductively isolated, but the red one can interbreed with the red, the pink one can interbreed with the pink, right? So इसको हम कहेंगे दो अलग अलग स्पीसीज है। बट मैं ये लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को बता रहा था, कभी कभी ओकेशनली वी डू क्रिएट, एट टाइम्स हाइब्रिड्स आर बीइंग क्रिएटेड। हाइब्रिड नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ हाइब्रिड, राइट? ये बहुत सारे यू नो, एंड जनरली हाइब्रिड्स आर इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज को एक साथ तुमने रिप्रोड्यूस करवाया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत टाइम में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में या बहुत टाइम में, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये इनफर्टाइल होते हैं, मतलब ये फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते।
सो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटर स्पीसीज, एक स्पीसी मतलब सपोज तुमने, ये तुम्हारे पास एक स्पीसीज है, ये तुम्हारे पास एक अलग स्पीसीज है, दोनों को जबरदस्ती तुमने एक स्पीसीज बना दिया, right? So this is the interspecific species. Now this species, most of the times it is sterile. At times it can be fertile also. I'll give you both the examples. जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि हॉर्स और डंकी, अगर तुम्हारे पास मेल हॉर्स है और फीमेल डोंकी है तो उसको हम एक साथ कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? मेल हॉर्स फीमेल डोंकी को एक साथ क्या कहते हैं? उनके हाइब्रिड को मेल हॉर्स फीमेल डोंकी हेयर क्या? म्यूल म्यूल अलग है, सर, हेयर हेयर नहीं, हिनी. This is known as hinny. Male horse and female donkey is known as a hinny. और उल्टा अगर होता है मतलब फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी अगर होता है, दैट इज अ म्यूल. और इसी तरीके से यू हैव टाइगॉन. व्हाट इज द टाइगॉन? टाइगॉन इज मेल टाइगर फीमेल लायन. और एक है लाइगर. लाइगर है मेल लायन फीमेल टाइगर. ठीक है, तो ये दोनों रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, दे आर फर्टाइल. लेकिन इन दोनों को ये जो नया स्पीसीज बना है अभी यहाँ पर, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ओके, क्लियर? तो हमने स्पीसीज के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं. पहला जो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीसीज वो प्राइमरी बेसिक यूनिट है, वहीं से क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा. तो पहला जो टैक्सोनॉमिक यूनिट है उसको हम कहते हैं स्पीसीज. और स्पीसीज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है. क्या क्या है बताओ? What are 2-3 important characteristics that a species must have? कैसे डिफाइन करोगे स्पीसीज को? Dynamic, genetically distinct, interbreeding. Capable of interbreeding within the same species. Correct. But now if I ask you, can one अच्छा, और ये जो एक स्पीसीज दूसरे जन के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? स्टेराइल. नहीं, स्टेराइल तो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं. द फैक्ट इज Interspecific. सर हाइब्रिड. वो तो तुम तो उल्टा बोल रहे हो. वो जो चीज कर पाता है उसको बोलते हैं, जो नहीं कर पाता है मतलब वो आइसोलेटेड है. दिस इज नोन एज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. One species is always reproductively isolated from another species. That is why एक species दूसरे जन के साथ reproduce नहीं कर पाता. लेकिन by chance अगर करते हैं, then I call them a, जो अभी तुम लोगों ने बोला, then that is known as an interspecific hybrid. Most of the times the interspecific hybrids are sterile. Some are fertile, जैसे tiger and liger are fertile. Okay, चलो let's continue. अच्छा, इसके बाद कभी कभी you will come across some terms which are known as subspecies, varieties, races. ये सब proper taxons नहीं है. These are not proper taxons, but I'll still try to explain. जैसे वैरायटी की अगर मैं बात करूं, वैरायटी मतलब अच्छा, सब स्पीसीज एक जूलॉजिकल टर्म है. स्पीसीज के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं उसको जूलॉजिकली हम, मोस्ट ऑफ द जूलॉजिस्ट्स कॉल इट सब स्पीसीज. मोस्ट ऑफ द बॉटनिस्ट्स उस वैरायटी को कहते हैं वैरायटी. राइट? तो ये क्या है? सो सब स्पीसीज या वैरायटी जो भी है या फिर रेस, ये एक स्पीसीज के अंदर ही आते हैं. दे फॉल अंडर द सेम स्पीसीज ओनली,
but they are a special class. I'll give you example. जैसे ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, ब्रासिका ओलियरिसिया। ये किसका साइंटिफिक नेम लिखा मैंने? अच्छा, साइंटिफिक नेम लिख रहा हूं, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द स्पीसीज, और ये है नेक्स्ट जो है वो है जीनस। अब जीनस क्या है वो नेक्स्ट कैटेगरी है, उसमें मैं समझाऊंगा तुम लोग, लेकिन उसके पहले तुम लोग मुझे बताओ ये ब्रासिका ओलियरिसिया क्या है? व्हाट इज ब्रासिका ओलियरिसिया? कैन आई हैव एनी आंसर? किसका साइंटिफिक नेम लिखा है? सब्जी है कोई जो घर में बहुत बनता है और विंटर्स में ज्यादा अवेलेबल होता है, और इसके काफी वेराइटीज भी होते हैं। एनी वाइल्ड गेस? सर कोई गोभी? हाँ, गोभी, बिल्कुल। गोभी को कहते हैं ब्रासिका ओलियरिसिया, गोभी को ही कहते हैं। अच्छी बात है। अब एक चीज देखो, जो पत्ता गोभी है उसको भी हम ब्रासिका ओलियरिसिया ही कहेंगे, और जो तुम्हारा फूल गोभी है उसको भी इसी नाम से पुकारेंगे। सो डिफरेंशिएट कैसे करोगे? दोनों ही गोभी है, दोनों का जीनस भी सेम है, स्पीसीज भी सेम है, और मैंने तुम लोगों को बता दिया कि स्पीसीज ही बेसिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो देन यू नीड टू हैव सब वैरायटी। ये जो मैंने लिखा, वैरायटी, रेस, ये वो चीजें हैं। लाइक गोभी की बात तुमने की, तो गोभी को हम कहेंगे ब्रासिका ओलियरिसिया, और अगर ये कैबेज है, इफ इट्स कैबेज, देन उसका साइंटिफिक नेम होगा ब्रासिका ओलियरिसिया वैरायटी कैपिटाटा। ये हो गया पूरा नाम। और अगर मैंने लिखा ब्रासिका ओलियरिसिया वैरायटी बॉट्राइटिस, देन ये हो गया कॉलीफ्लावर। तो अब समझे ये वैरायटी या सबस्पीसीज किस चीज को कहते हैं हम? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. ओके, तो जीनस, ओके, yes, sir. হ্যাঁ পীযূষ কি বলছো বলো। কিছু কিছু কি এক ফোঁটা তুমি যে কিছু বলছো আমি একদম বুঝতে পারছি না। कुछ ब्रोकली भी तो इसी फैमिली का बिलोंग करता है। कैन समवन हियर हिम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर बोल रहा है ब्रोकली भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। Sir, আচ্ছা, broccoli কথা ব্রোকলি বলছে। কি বলো? ব্রোকলি এই तो कैटेगरी? ब्रोकली भी इसी फैमिली का बिलोंग करता है तो क्या हो जाएगा? नहीं, ब्रोकली तो इसमें बिलोंग करता ही नहीं है। मतलब ये ब्रासिका ओलियरिसिया, तो उसका वैरायटी अलग है, वैरायटी इटालिका। सारे सेम जीनस सेम स्पीसीज, बट सब अलग है, फैमिली सबके अलग है। देन और एक है ओल कॉफी, बांग्लाते बोले जानो तो, दैट्स द मिसौरी टाइप। ओल कॉफी जानो, बांग्लाয় बोले, আমি मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। Yes, sir. Okay, so so there are different varieties of coffee that you have actually. Okay, so then you have gemifera. There is something which is known as gemifera. ये जो, अच्छा, तो किसने पूछा? ब्रोकोली जो तुमने पूछा, that is Italica variety। Okay, sir. Okay, हाँ, और then you have gemifera, ওই যে ওল কফি আমরা একটা বলি। তো এই যে ভ্যারাইটিজ, আরো ভ্যারাইটিজ আছে, কফির প্রচুর ভ্যারাইটিজ আছে, ঠিক আছে? তো এইগুলো একটুখানি জানতে হবে, मैंने एगलो नामগুলো जानते হবে না, জিনিসটা বুঝতে হবে, चीज समझने की कोशिश करो, मतलब नाम उतना याद रखने की अभी कोई जरूरत नहीं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब मैंने यहाँ पर और एक चीज के बारे में बता, यू नो, आई हैव टॉक्ड अबाउट अनदर थिंग व्हिच इज नोन एज द रेस। व्हाट इज द रेस? रेस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सपोज जैसे आदिवासी, हाँ, जैसे नीग्रो, ये कोई अलग स्पीसीज नहीं है। या फिर हम बोलते हैं ना कि रेड इंडियन, सो दीज आर नॉट अलग स्पीसीज नहीं है, या उसमें कोई अलग वैरायटी भी नहीं है, बट दीज आर डिफरेंट रेसेस। मतलब
एक एक जगह पर एक एक मैनर में वो लोग बिलोंग करते हैं. आई कैन they can be called subspecies, but I would prefer to call them a race. So a race is a group of individual which is, so I should say they are forming a permanent different breed. They are different breeds. उसमें उनका बॉडी प्रोपोर्शन अलग होता है, उनके नाक का शेप अलग होता है, उनका हेयर का पैटर्न अलग होता है, स्किन का पिगमेंटेशन अलग होता है. सो देखने से ही समझ में आता है कि ये आदिवासी लोग हैं और ये शहर मतलब these are the ones who belong to the normalcy which we call as normal because they are as normal as we are. उनको लगता है they are as normal as we are. हमको लगता है कि they are not normal, but उनको लगता है कि we are not normal. तो ये अलग बात है, मतलब that depends. Okay, so I have talked about Negroes, Red Indians, उसके बाद और भी है जैसे Mongoloid. So these are different. ये अलग अलग रेसेस हैं. So these are different. But हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ. तुम एक Mongoloid को ले लो और Negro को ले लो. Can they interbreed? Yes, they can interbreed. वो दोनों रिप्रोड्यूस कर पाएंगे. मैं अगर if I marry a Negro today and can I produce a child? Yes, I can produce a child. Very much possible. Because we all belong to the same species. Our race is different. Have you understood? Any problem in species? सर स्पीसीज सेम है मींस क्या क्या सेम रहता है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दिया. सर स्पीसीज सेम है मींस वो एक्चुअली क्या क्या सेम नहीं, मतलब वही चीज सेम रहता है that they can reproduce with each other. That is the same thing. Okay, they look morphologically more or less they are same and they can reproduce. इसीलिए बोला मैंने रिप्रोडक्ट, वो डेफिनेशन में ही है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. वही मेन कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है ना? ओके. उसके बाद हम चले आते हैं जीनस. जीनस इज द फर्स्ट लेवल अबव द स्पीसीज. और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो स्पीसीज रिलेटेड होते हैं, द रिलेटेड स्पीसीज इन सम वे और द अदर, या फिर रिसेंबल करते हैं, कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उनमें, तो उनको एक साथ एक ग्रुप में हम प्लेस कर सकते हैं, which is known as the genus. I can place them in a group which is known as the genus. And जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें सेम रहता है, we call them co-related characteristics. तो फिर जितने भी स्पीसीज है, जितने जनों में रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है या रिसेम्बलेंस रहता है, उनको हम डिपेंडिंग ऑन देयर को-रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स वी क्लासिफाई देम इनटू अ हायर कैटेगरी व्हिच इज नोन एज द जीनस. ओके. एंड तो फिर जितने भी स्पीसीज हैं, सारे स्पीसीज, आई कैन से दैट द जीनस इज द कॉमन एंसेस्टर टू ऑल द स्पीसीज. आई विल अगेन गिव यू एग्जांपल. जैसे ब्रासिका. ब्रासिका मतलब होता है मस्टर्ड. ब्रासिका का मतलब होता है मस्टर्ड. हाँ, अब देखो ब्रासिका के बहुत सारे वेराइटीज हैं. जैसे यू हैव ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस. जिस चीज को हम एक्चुअली मस्टर्ड बोलते हैं वो है ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस, द येलो मस्टर्ड. And then you have the black mustard, which is known as Brassica nigrum. उसके बाद white mustard भी है, जिसको हम कहते हैं Brassica alba. और उसके बाद टर्निप, पता है तुम लोग को टर्निप? शलगम. यस सर. वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, which is known as Brassica rapa. तो देखो ब्रासिका इज द कॉमन जीनस. उसके अंदर कैंपेस्ट्रिस, निग्रम, एल्बा, राफा सब अलग अलग आते हैं.
ये तो फिर ये एक दूसरे से अलग क्यों है? क्योंकि ये इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ नहीं कर पाएगा, ये इसके साथ नहीं कर पाएगा, कोई भी किसी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. So hence they belong to different species, but they are related species, and hence they fall under the same genus. I'll give you another example. I think you'll understand it better. जैसे पैंथेरा. पैंथेरा एक कॉमन जीनस है. पैंथेरा में एक है पैंथेरा ओंका, which is jaguar. उसके अलावा है पैंथेरा टाइग्रिस, which is tiger. उसके बाद है पैंथेरा लियो, which is lion. उसके बाद है पैंथेरा पार्डस. मतलब ये सारे स्पीसीज के नाम लिख रहा हूं मैं. हाँ, ये है जीनस. पैंथेरा ओंका इज जैगुअर, पैंथेरा टाइग्रिस इज टाइगर, पैंथेरा लियो इज लायन, पैंथेरा पार्डस इज लियोपर्ड. ठीक है, तो देखो ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग है, ये जन भी अलग है, ये जन भी अलग है, लेकिन सारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, इसीलिए सबको हमने एक साथ एक ही जीनस में रखा है, which is known as the Panthera. Clear everyone? Yes. Okay. अब देखो ये तो हो गया. तो नीचे है, बिल्कुल नीचे द बेसिक इज स्पीसीज. स्पीसीज के अंडर दो तीन चीजें आते हैं. वो क्या क्या है? मतलब स्पीसीज के नीचे जो अलग से कोई टैक्सॉन नहीं है, क्या है मैंने बताया अभी, बताओ. स्पीसीज के नीचे, बिलो द स्पीसीज. Subspecies varieties. Yes, subspecies, varieties and race. Okay, और उसके ऊपर आता है जीनस. अब देखो ऑल द जेनेरा हैविंग कॉमन फीचर्स. सारे जो जेनेरा है जिनमें कुछ कुछ फीचर्स कॉमन है, सबको हम एक साथ एक फैमिली में मतलब एक फैमिली में प्लेस करते हैं. सो व्हाट इज अ फैमिली? Family will contain one or more related genera. जितने भी जेनेरा एक फैमिली में रखे जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेटली रहेंगे. जैसे हाँ, जैसे मैं बताता हूं. जैसे हमने पैंथेरा के बारे में पढ़ा, पैंथेरा. और इधर हमने पढ़ा, अच्छा ये नहीं पढ़ा है लेकिन मैं दूसरी चीज की नाम बता रहा हूँ, फेलिस. पैंथेरा के अंदर हम लोगों ने लियो, उसके बाद पार्डस, टाइग्रिस, ये सब हम लोगों ने पढ़ा. और फेलिस मतलब है कैट. और कैट और पैंथेरा में भी कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसीलिए पैंथेरा एक अलग जीनस है, फेलिस भी एक अलग जीनस है, लेकिन हम दोनों जीनस को एक डिस्टिंक्ट फैमिली के अंदर प्लेस करते हैं, विच इज नोन एज फेलिडी. इसके अंदर इस जीनस के अंदर हम कभी भी एक डॉग को या वुल्फ को नहीं प्लेस करेंगे, लेकिन ऑल द डॉग्स, द वुल्व्स, द फॉक्सेस, they all are placed under one family which is known as Canidae. सर तो पैंथेरा और फेलिस का जीन अलग है या फिर सेम है? जीनस अलग है, फैमिली सेम है. दिस इज द फैमिली. फेलिडी अलग है, पैंथेरा अलग जीनस है. पैंथेरा के अंदर क्या क्या आता है? पैंथेरा के अंदर लियो, पार्डस, टाइग्रिस, ये सब आता है, ओंका. और फेलिस अलग जीनस है जिसके अंदर कैट्स आते हैं, वेराइटीज ऑफ कैट्स हैं. तो लेकिन पैंथेरा और फेलिस में बिकॉज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इसीलिए दोनों को मिला के हमने एक कॉमन फैमिली के अंदर रखा है विच इज नोन एज फेलिडी. और वैसे और एक अलग ये भी है, अलग एक कंप्लीटली अलग फैमिली है विच इज नोन एज कैनिडी, जिसके अंदर डॉग, वुल्व्स, फॉक्सेस ये सब आते हैं. ये कॉमन फैमिली में आते हैं. और फेलिडी और कैनिडी में भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है. एक डॉग में और एक
कैट में भी कुछ सिमिलैरिटी है। इसीलिए क्या सिमिलैरिटी है, दोनों ही फ्लैश खाते हैं या दोनों ही कार्निवोर्स हैं। तो इसीलिए फेलिडी और कैनिडी दोनों को हमने एक साथ प्लेस किया है एक अलग एक हायर क्लासिफिकेशन में, जिसको हम कहते हैं कार्निवोरा। एंड दिस कार्निवोरा, ये इट इज नोन एज द ऑर्डर, इट इज नोन एज द ऑर्डर। ओके, सो व्हाट डिड आई सी, मैं फिर से बता देता हूं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज बिल्कुल नीचे, सिमिलर स्पीसीज को ज्वाइन करो तो जीनस, अलग अलग जीनस जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है ज्वाइन करो तो उसमें हो जाएगा फैमिली। यहीं पर मैंने कहा कि दो अलग जीनस है, डॉग का जीनस अलग है, सॉरी देखो जैसे डॉग, उसके बाद वुल्फ, उसके बाद फॉक्स, ये सब अलग अलग जीनस है, लेकिन तीनों ही सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं और फैमिली का नाम है कैनिडी। वैसे ही एक कैट मतलब फेली, जिसको हम कहते हैं उसी तरीके से जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि फेलिस, उसके बाद जो पैंथेरा, ये अलग अलग जीनस है, ये दोनों ही अलग जीनस है, लेकिन दोनों को हमने सेम फैमिली में प्लेस किया है और फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी। और ये जो फेलिडी है और ये जो कैनिडी है, दोनों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, तो इसीलिए मैंने उसको एक हायर क्लासिफिकेशन में प्लेस किया, विच इज नोन एज द ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद जैसे एक कैनिडी, फेलिडी, उसके बाद एक जो माउस है, तो बोलेंगे माउस के साथ क्या सिमिलैरिटी है, या फिर वेल्स है उसके साथ क्या सिमिलैरिटी, हाँ है, उनमें भी सिमिलैरिटी है। और सिमिलैरिटी क्या है, क्योंकि सारे ही मैमल्स हैं, तो इसीलिए उनको एक साथ एक क्लास में प्लेस किया जाता है, और सारे जो क्लासेस हैं उनको मिलके एक फाइलम में प्लेस किया जाता है, और सारे जो फाइलम है उनको एक जगह पर प्लेस किया जाता है, विच इज नोन एज द किंगडम। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये हम लोग जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहां पर हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसमें कौन से फाइलम्स आते हैं, उसमें कौन से क्लासेस आते हैं, उसमें कौन से ऑर्डर्स आते हैं, कुछ कुछ जगह पर हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन जो नीचे वाले चीजें हैं वो उसको वो तुम्हारे सिलेबस के स्कोप में नहीं है, इसीलिए मैंने कॉमन एग्जांपल्स लेके समझाया। सो स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, उसके ऊपर ऑर्डर, उसके ऊपर क्लास, उसके ऊपर फाइलम, उसके ऊपर किंगडम। Okay, have you all understood this? Yes. Okay, मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, मैं किंगडम से स्टार्ट करता हूं। जैसे किंगडम की मैं अगर बात करूं, जस्ट आई डोंट गेट कंफ्यूज्ड, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट बहुत छोटा सा एक चीज दे रहा हूं, ये इस चैप्टर का नहीं है, फिर भी समझाने के लिए दे रहा हूं। जैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उसको दो किंगडम्स में प्लेस करते हैं, जैसे किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी। प्लांटी को, एनिमलिया को भी हम क्लासिफाई इनटू मैनी फाइलम्स। उनमें से मैं दो मेजर कैटेगरीज में उसको डिवाइड करता हूं। वन इज नॉन कॉर्डेट्स, another one is phylum chordata. This is the phylum. Chordata मतलब जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उसको हम कॉर्डेटा कहेंगे। फिर कॉर्डेट्स में भी जैसा मैंने कहा कि यू विल हैव मैमल्स एंड देन यू विल हैव अदर कैटेगरीज आल्सो। तो ये इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अब नॉन कॉर्डेट्स में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज यू पीपल। जब हम इसी चैप्टर के बाद नेक्स्ट क्लास से ही हम स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमलिया, तो वहां पर मैं डिटेल्स में उस क्लास में तुम लोगों को समझाऊंगा। अभी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए जो चीज याद रखोगे, द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द स्पीसीज। Similar species form genus, similar genus form the family,
Similar family form the order. Similar order form the class. Similar classes form the phylum. And similar phylum, they form the kingdom. प्लांट्स में फाइलम नहीं रहता है और फाइलम के जगह पर रहता है डिवीजन। एक चीज अब मुझे समझाओ तुम लोग, जितना ऊपर जाओगे ऑर्गेनिज्म का क्वांटिटी बढ़ेगा या घटेगा? बोलो तो। बढ़ेगा। सर घटेगा सर। बढ़ेगा। और नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। वेरी गुड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जितना तुम ऊपर जाओगे उतना नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विल डिक्रीज। सर इंक्रीज। number of organisms having the common characteristics will इंक्रीज। Hello, सर sir. इंक्रीज। increase. Yes, बोलो हेलो सर बोलो। सर साउंड इको हो रहा है। हाँ हाँ, क्योंकि सब मैं ठीक है ओके। एक जन माइक ऑन करके बताओ। और जितना हम नीचे आएंगे उतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स विल सर कम होगा सर। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स सम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर कम होगा। हाँ सर। एंड वो कम ऑर्गेनिजम्स का नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो सेम है वो क्या होगा? कंफ्यूज्ड हो गए? अच्छा मैं सर बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। So can I write this? जितना नीचे जाओगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होता है। और यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है बट number of organisms having the common characteristics increase. Clear everyone? Any doubt in this? बोलो। नो सर। सर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होता है, बताइए। मैं ये समझा देता हूं, जैसे एक मस्कीटो और मुझ में क्या सिमिलरिटी है? सर दोनों आदमी पी सकते हैं। दोनों ही एनिमल्स हैं, मस्कीटो और मैं दोनों ही एनिमल्स हैं, लेकिन हम सिमिलर दिखने में। मस्कीटो कंप्लीटली एक अलग चीज को बिलोंग करता है, मैं कंप्लीटली एक अलग फाइलम को बिलोंग करता हूं। तो जितना ऊपर जाओगे मैं और मस्कीटो सेम फाइलम में बिलोंग करते हैं। मैं और मस्कीटो सेम किंगडम में बिलोंग करते हैं। बोथ आर एनिमल्स बट आवर रिस्पेक्टिव फाइलम्स आर डिफरेंट, आवर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। यू अंडरस्टैंडिंग? जितना नीचे आओगे उतना नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स घट जाएंगे बट कम ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे मैं और तुम, हम सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, इसीलिए हमारे में कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर है। लेकिन मैं और एक डॉग, हम अलग फाइलम्स को बिलोंग करते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। दैट इज नथिंग। ओके, अच्छा अब सो और ये हर लेवल में जो हमने पढ़ा, फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, all of these are known as, ये सारे all these categories, इसको हम कहते हैं हायरार्की। ये है, जितना तुम ऊपर जाओगे उसका वेटेज बढ़ता है और उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो रहा है। इसको हम कहते हैं हायरार्की, where when you go from low to high, the number of common characteristics decreases, but the number of organisms having the common characteristics increases. And as you move from up till down the hierarchy, then the number of organisms having the common characteristics decreases, but the number of common characteristics increases. Clear everyone? यस सर। और एक चीज, Yes, sir. फैमिली भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन है, फाइलम भी टैक्सॉन है, किंगडम भी टैक्सॉन है, डिवीजन भी टैक्सॉन है, जीनस भी टैक्सॉन है, स्पीसीज भी टैक्सॉन है। सारे ही टैक्सॉन है बट सबका लेवल अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। सो अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप of any rank that is sufficiently distinct
to be worthy, I mean worthy to be a definite category. अलग अलग कैटेगरी है ये. क्लियर? एनी डाउट? सर अभी क्या बोले समझ नहीं है. देखो मैंने जो अभी हिंदी में बोला मैंने उसी को साइंटिफिक टर्म में बताया कि व्हाट आर, हाउ डू यू डिफाइन दिस. सो टैक्सॉन इज इक्वल टू टैक्सोनॉमिक ग्रुप है ये. सो इट इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक. क्यों मैंने एनी रैंक क्यों बोला है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है, स्पीसीज भी टैक्सॉन है, जीनस भी टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन है, फाइलम भी टैक्सॉन है, किंगडम भी टैक्सॉन है. सो इट्स अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप क्यों बोला समझ में आ गया. एनी रैंक क्यों बोला ये भी समझ में आ गया, क्योंकि स्पीसीज भी टैक्सॉन है, किंगडम भी टैक्सॉन है. स्पीसीज सबसे छोटा टैक्सॉन है, लोएस्ट रैंक. किंगडम सबसे ऊपर है, हाईएस्ट रैंक. बट बोथ ऑफ देम आर टैक्सॉन्स, राइट? And they are worthy of a definite category. Worthy of a definite category. मतलब क्या है? मतलब अभी मैंने स्पीसीज में एंड क्यों कर दिया? मैं सब स्पीसीज से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन सब स्पीसीज इज नॉट वर्दी ऑफ एनी कैटेगरी. उसको अलग से तुम कोई डिफाइन नहीं कर पाओगे, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है. एक एक जगह पर एक एक टाइप का होता है. सो इट इज नॉट वर्दी. सो तो पहली बात है, इट शुड बी वर्दी. या फिर एक रेस, मतलब जो तुम्हारा एक आदिवासी पीपल है, जो मंगोलॉइड है, या फिर जो रेड इंडियंस है, ये जो बुशमैन्स है, उसको तुम अलग स्पीसीज नहीं, या मतलब उसको अलग रेस बोल सकते हो, लेकिन कोई अलग है, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही है. उसके साथ हम एनी कॉमन मैन कैन रिप्रोड्यूस विद देम आल्सो. सो ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू ओनली वन सिंगल रैंक व्हिच इज नोन एज स्पीसीज. सो व्हाट इज अ टैक्सॉन? टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक. स्टार्ट एनी रैंक मतलब स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम. व्हाई ये क्यों बोल रहा हूँ? इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन उसका वो उतने वर्दी नहीं है कि उसको हम अलग से उनका नाम लें. तो इसीलिए हम सब स्पीसीज, रेस, इसको उतना तवज्जो नहीं देते, इसको इतना वेटेज नहीं देते. क्लियर हो गया? यस सर. हाँ, मतलब कुछ ऐसी बात हो गई. किसने ये क्वेश्चन किसने पूछा मुझसे? सूर्यभान. यस सर. तुम्हारे घर में जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो क्या क्या बनाते, मतलब क्या क्या, व्हाट इज कुक्ड इन योर हाउस तुम्हारे बर्थडे के दिन स्पेशल? सर वैरायटी ऑफ खाना बनता है, जैसे कि क्या बोलो बोलो बोलो. सब्जी, आलू दम, पनीर का आलू दम, फिर पनीर का सब्जी, खीर, पूरी, खीर, पुलाव, ये पूरी, सब पुलाव होता है. अच्छा, अब मैं तुमसे ये बोल दिया ना तुमने, अब तुम मुझे बताओ, उस दिन राइस नहीं बनता तुम्हारे घर में? बनता है. बनता है. ग्लास में पानी नहीं देते तुम्हें उसके साथ? देते हैं. तुमने बोला क्यों नहीं? सर वही उतना चीज जरूर. अब समझ में आ गया सूर्यभान मेरा, मतलब व्हाट आई वांट टू से, वो उतना वर्दी कैटेगरी नहीं है. यस सर. तो जब मैं एक स्पीसीज बोलता हूँ तब मेरे दिमाग में आ जाता है कि स्पीसीज मतलब उसके अंदर सब स्पीसीज ये सब है, तो इसलिए मैं अलग से कैटेगराइज नहीं करूंगा. तो जैसे सूर्यभान ने अपने फेवरेट मतलब पूरी की बात की, आलू की सब्जी की बात की, फिश की बात की, तो यू नो दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द हाइलाइट्स. तो ये अलग अलग कैटेगरीज है. स्टार्ट करोगे कुछ वैसे चीज से, एंड करोगे कुछ मीठे से. सो दीज आर द अलग अलग कैटेगरीज. बट उसके साथ पानी है, लेकिन वो इतना ही, यू नो, इट गोज विदाउट सेइंग, एंड दैट इज व्हाई आई हैव नॉट क्लासिफाइड. सो इट्स नॉट वर्दी ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन is it not important? It is also important. It may not be worthy of classification, but it's not that it's not important. अब जब तुम्हें बहुत प्यास लगेगी तब तुम जाके पूरी नहीं खाओगे, तब तुम्हें वो पानी ही पीना पड़ेगा, है कि नहीं? तुम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, माय गुडनेस, तो वहां पर तुम्हारे पास एक पूरी रखा हुआ है, तुमने 5 घंटे से कोई पानी नहीं पिया है, पूरी रखा है और वहां पर तुम्हारे पास पानी रखा है. तुम्हारा, यू नो, विदाउट इवन थिंकिंग, फर्स्ट you'll drink the water and then you'll start eating that. So you know, it is not devoid, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग हायरार्की नहीं है. क्लियर? यस सर. यस सर. ओके. अच्छा, लास्ट
लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, ये जो टैक्सोनॉमिकल चीजें हैं उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए, there are some things which are known as taxonomical aids. Taxonomical aids. Taxonomical aids में पहला आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या किया जाता है, एक बुक बनाया जाता है, एक बड़ा सा एक बुक बनाया जाता है, और वहां पर हम क्या करते हैं, वो डिफरेंट प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को लेते हैं, उसका एक ये सपोज प्लांट है, उसका यहाँ से मतलब ब्रांचिंग से काट लेते हैं और पूरे चीज को लेते हैं, लेके थोड़ा सा ड्राई करते हैं और ड्राई करके उसी चीज को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके ड्राई करने के बाद पेस्ट करते हैं और कभी कभी इसके ऊपर थोड़ा पाउडर या फिर थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड या ऐसा कुछ स्प्रे कर देते हैं। मतलब पहले ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, फिर माउंट करते हैं और फिर नीचे ऐसे लेबल कर देते हैं। लेबलिंग में क्या क्या लिखा रहता है कि फ्लो नंबर लिखा जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, उसका फैमिली लिखा जाता है, कहाँ से वो मिला है, उसका लोकेलिटी लिखा जाता है, कितने ऑल्टीट्यूड से उसको तुमने कलेक्ट किया है, किस दिन कलेक्ट किया है, किसने कलेक्ट किया है, या फिर कोई अलग अलग कोई स्पेसिफिक उस जगह का कोई स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक है, सब कुछ नीचे लिखा जाता है। तो इस तरीके से एक बुक बनाया जाता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, इस बुक का एक लाइब्रेरी भी बना सकते हो तुम। सो इफ यू वांट टू मेक अ लाइब्रेरी, अब ये तो तुम्हारे ऊपर है। मैं एक बुक बना सकता हूं कि मैंने रैंडम लिया, मैंने फर्स्ट पेज में रोज को लगाया है, लास्ट पेज में मैंने नीम पत्ते को लगाया, ये मेरा विश है। लेकिन जो कमर्शियल हर्बेरियम्स होते हैं वो बहुत ये होते हैं, मतलब उन्होंने वहां पर क्या किया जाता है, एक बुक में एक ही स्पीसीज के सारे होते हैं और एक स्पीसीज का एक बुक, जितने सारे स्पीसीज हैं सब मिलके बहुत सारे बुक बन गए, सब मिलके एक जीनस, उसको एक मतलब एक बड़ा सा क्या कहूं मैं, जैसे घर में एक सर रैक, हाँ अलमारी, हाँ रैक। तो सपोज करो कि यहाँ पर एक स्पीसीज के अलग अलग बुक्स है, यहाँ पर अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, सब मिलके एक जीनस बन गया। ये हो गया मेरा एक रैक। तो ऐसे बहुत सारे रैक्स रहेंगे, या फिर ऐसे ये सपोज हो गया एक अलमारी, ऐसे सपोज 10 या 20 या 100 अलमारी है। ये अब तुम्हारे ऊपर है। मुझे शायद एक इतना कुछ नहीं बनाना है, एक हर्बेरियम सिंपल एक बुक बनाना है कि मैं सोनारपुर में रहता हूँ, तो सोनारपुर में कितने प्लांट्स मिलते हैं, तो मैं मेरा जो कैटेगराइजेशन होगा उसमें मैं स्पीसीज या जीनस उसके वाइज अलग डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। सो आई एम नॉट बॉदर्ड विद दैट। तो इट डिपेंड्स कि तुम किस चीज, व्हाट इज योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अच्छा, जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है, it is found in it is known as the Royal Botanical Garden. Royal Botanical Garden, ये this is in England, ठीक है। और एक है which is इंडिया के अंदर जो लार्जेस्ट है वो हमारे कोलकाता में ही है। इट इज नोन एज द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कोलकाता में। एनीवे, तो ये तो हो गया। इसके अलावा देयर आर सर्टेन ये जो कीज की बात मैंने की, you have regions which are known as botanical gardens. This is also a botanical garden. What is a botanical garden? Botanical garden सिर्फ एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर तुम फूल उगाओगे। तुम्हें लग रहा है कि नहीं, वो उतना जितना इजी तुम सोचते हो वैसा नहीं है। वहां पर प्लांट्स को लिया जाता है, अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग फीचर दिया जाता है ग्रो करने के लिए। अलग अलग, ये पूरा सपोज एक गार्डन है, उसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। तुम जाके देखोगे यहाँ पर ये प्लांट है, वो प्लांट वहां पर है, तो तुम्हें लगता है हमें गार्डन नहीं, उसका एक स्पेशलिटी रहता है क्लासिफिकेशन का, उसका एक स्पेशलिटी रहता है क्लासिफिकेशन का। एक एक जगह पर एक एक चीज ग्रो करवाया जाता है। एक जगह पर शायद ज्यादा सनलाइट मिलता है, दूसरे जगह पर स्वैम्पी मतलब पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पर शायद पॉन्ड है, वहां पर वाटर हाइड्रोफाइट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर शायद एक कोल्ड स्टोरेज जैसा बनाया गया है जहां पर प्लांट्स विच रिक्वायर कोल्ड टेम्परेचर वो ग्रो कर रहे हैं। ऐसा रीजन कहीं पर एक ग्रीन हाउस बना दिया गया है उसी बॉटेनिकल गार्डन में, जहां पर जो ठंडे रीजन्स पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस, उनको ग्रो करवाया जा रहा है। सो अगेन
और उसके अंदर अगेन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के लिए अलग जगह है, जीनस के लिए अलग जगह है, फैमिली के लिए अलग जगह है। So I suppose you are understanding, इस तरीके से एक बोटानिकल गार्डन को सजाया जाता है और हर प्लांट का जो जियोग्राफिकल नीड है ग्रो करने के लिए उसको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स आर द प्लेसेस जहां पर प्लांट्स या एनिमल्स लिविंग नहीं है। हमने बोटानिकल गार्डन, और बोटानिकल गार्डन मतलब लिविंग प्लांट्स, लाइव, इट्स अ लाइव taxonomical aid, but a herbarium is a preserved one, museum is a preserved one, right? डिफरेंट स्पेसिमेंस को डिफरेंट कैटलॉगिंग करके डिफरेंट, ऐसे देखोगे तुम म्यूजियम में जाओगे तो ऐसे बॉटल्स रहते हैं जहां पर एक एक एनिमल्स को इस तरीके से स्टोर किया जाता है, या फिर उसके स्पेसिमेन को अल्कोहल, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से अल्कोहल एसीटोन में चुबो के रखा जाता है ताकि उसका मेटाबॉलिज्म और ना बढ़े या घटे। So anyway, this is museum, and then you have, जैसे plants को लेके जैसे botanical garden है, वैसे animals के लिए है zoological park. You have the zoological park. The zoological park is the place where the live animals are maintained. Botanical garden is a place where live plants are maintained. Zoological park is the place where live animals are maintained and they are allowed to breed naturally. उनको naturally breed करवाया जाता है। And we come to know about the food, हर एनिमल का अलग अलग फूड हैबिट है, और यहाँ पर जूलॉजिकल गार्डन में जो चीज मेंटेन किया जाता है वो है एक फूड चेन मेंटेन किया जाता है, राइट? सो यू नीड टू रिमेंबर दीज। सो दीज आर नोन एज द कीज, द टैक्सोनॉमिकल एड्स। इसके अलावा देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज द टैक्सोनॉमिकल की। ये जो की है ये मैं सेटअप कर सकता हूँ। These, what is a key? A key is a set of questions. कुछ questions मैं पूछूंगा और question पूछने से मुझे समझ में आएगा कि मेरा ऑर्गेनिज्म क्या है। अब ये जो मैंने बताया तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो I'll take an example. Suppose तुम्हें किसी ने एक snake, एक fish, एक frog, cat, bird, bat, ये सब एनिमल्स अलग से दे दिए और बोला है तुम्हें कि चलो अलग करो। ऐसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो है क्लासिफिकेशन, वो अलग है, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ की। तो इसको अलग करने के लिए मैं खुद सेट ऑफ क्वेश्चंस बना सकता हूँ। जैसे ये और भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो चीज है मैं फिर से पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ये जो की वाला चीज है मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज जस्ट एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 6 एनिमल्स हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है व्हाट आई शुड आस्क इज, डज इट हैव अ ईयर? डज इट हैव अ ईयर? उसमें एक्सटर्नल ईयर है कि नहीं? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर है, इफ इट हैज अ ईयर, देन मैं लिखूंगा इफ यस, देन गो टू क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। Let's go to question number 2. What is the question number 2? The question number 2 is, can it fly? Can it fly? अब इसका आंसर हो सकता है नो, इसका आंसर हो सकता है यस। नो है मतलब यस है तो यहीं पर स्टॉप कर दो, देन इट इज अ बैट। So what is a bat? Bat is an animal which has external ears and can fly. क्लियर? तो बैट को मैंने क्लासिफाई कर दिया, काट दिया मैंने। और अगर नो है देन यू प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने पूछा कैन इट, अच्छा तुमने अभी बोला कि कैन इट फ्लाई, राइट? तो यहाँ पर अगेन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, कैन इट फ्लाई? देन द आंसर इज yes or the answer is no. अगर आंसर हुआ नो
then ये हो जाएगा मेरा cat. And if the answer is yes, please try to understand. If the answer is yes, then you go to question number 4. What is question number 4? Does it have limbs? अगर आंसर है yes, then it's a frog. अगर आंसर है no, then please go to question number 5. 5 नंबर में मैंने एक अलग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर. Does it have gills? आंसर हो गया yes, then it's a fish. आंसर हो गया no, then it's a snake. Did you understand the thing? कि मुझे मैं फिर से समझा देता हूँ. I'm doing it again. In case you are confused, फिर से एक बार देखिए. ये मैंने सपोज किसी ने तुम्हें बोला है कि तुम्हारे पास एक फिश है, एक स्नेक है, फ्रॉग है, बर्ड है, बैट है, कैट है. 2 3 4 5 6. हाँ, कैसे डिफरेंशिएट कर? पहले देखो सारे ही मैमल्स हैं. तो अब तुम एक क्वेश्चन पूछो, उसमें ईयर है, मैं ऐसे लिखता हूँ यस नो. ठीक है, ऐसे लिखता हूँ. ईयर है, हो सकता है यस. अगर यस, देन प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 2. अगर है नो, देन प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कैन इट फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सेम क्वेश्चन, कैन इट फ्लाई. राइट. So if the answer is yes, it has external ear. It has external ear, right? And it can fly. Then what will be the answer? Then yes, it will be a bat. And if it does not have a external ear, ये अगर नो होता है, then go to question number, यहाँ पर भी go to question number 3. तो ये इसके लिए भी question number 3 में जाओ, इसके लिए भी question number 3 में जाओ. Question number 3 में फिर से same question, can it fly? अगर आंसर है yes, then it's a bird. अगर आंसर है no, then हम बोलेंगे go to question number 4. Question number 4 में क्या पूछेंगे? Does it have limbs? अगर आंसर है yes, then it's a frog. अगर आंसर है no, then go to question number 5. 5 में हम फिर से और एक क्वेश्चन पूछेंगे. Does it have gills? आंसर अगर है yes, then it is fish. और आंसर अगर है no, then it is snake. ये मैंने अपने विश से ये क्वेश्चंस पूछे हैं. तुम्हें जो क्लासिफाई करना है, तुम अपने सेट ऑफ क्वेश्चंस अलग से बना सकते हो. ये तुम्हारे ऊपर है, ये कोई डिफाइंड नहीं है. तुम्हें क्लासिफाई करने का मन हुआ है तो तुम क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे. जैसे कोई अगर एक क्वेश्चन देते कि इसको क्लासिफाई करो, तो तुम अपने दिमाग में सोचते हो ना, ये चीज है तो ये मैं. जैसे तुम लोग अगर ये 4 ऑप्शंस जब तुम लोग को दिया जाता है, तो तुम लोग जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन चूज होता है. अच्छा ये तो फिर these are the 4 questions that I asked to myself, and hence ये आंसर होगा डी, ये आंसर होगा सी, ये आंसर होगा बी. वही उसी का एक साइंटिफिक मेथड है. Have you understood everyone? सर इसमें तो कंफ्यूजन है. क्या है बोलो. सर बैट भी सर बैट तो उड़ भी सकता है, उसके पास ईयर्स भी है. तब वो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं है? हाँ वही तो है. अगर इफ द आंसर इज yes, then go to question number 2. वही तो लिखा है मैंने. मैं अगर फर्स्ट में ही लिख देता, then I cannot say that it can fly ना. Only having a ear does not make a bat a bat. उसको तो fly, only having a ear does not make it a bat. उसके पास ear भी है और वो fly भी कर सकता है, तब मैं उसको bat कहूंगा. और जो bird है, उसके पास वो fly कर सकता है, लेकिन उसके पास ear नहीं है. That is the difference. और जो frog है,
हाउ कैन आई डिफाइन अ फ्रॉग? उसके पास ईयर नहीं है, वो फ्लाई नहीं कर पाता है, लेकिन उसके पास लिम्ब है. गिल्स, फिश को क्या कहेंगे? उसके पास ईयर नहीं है, फ्लाई नहीं कर पाता है, लिम्ब भी नहीं है, लेकिन उसके पास गिल है. और उसके पास ईयर नहीं है, फ्लाई नहीं कर पाता, लिम्ब भी नहीं है, गिल भी नहीं है, तो जो बाकी रह जाता है वो है स्नेक. क्लियर? ये मेरे सेट ऑफ क्वेश्चन. यस सर. हो सकता है कि आफ्टर यू पीपल लर्न द एनिमल किंगडम, मैं तुम लोगों को एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए बोलूंगा. ठीक है? I'll ask you to just a second, please. Just a second. So you can also make your own set of questions, and I'll ask you to make your own set of questions. मैं कुछ organisms दे दूंगा और वहां से तुम अपने set of questions बनाओगे. After we finish the classification. तो आज का class basically एक introduction था. This chapter itself is an introductory chapter. और अब हम gradually next class से classification में ज्यादा details में enter. अभी सिर्फ कुछ नाम इधर उधर तुम लोगों ने जान लिया. आज के क्लास में हमने मेनली क्या पढ़ा? द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. एक नोमेनक्लेचर जब होता है, एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जब होता है, उसके दो नाम होते हैं. फर्स्ट जो अच्छा ये चीज जस्ट फॉरगॉट टू टॉक अबाउट इट. जस्ट आई टॉक अबाउट होमो सेपियंस. ये है स्पीसीज, ये हो गया हमारा जीनस. जब लिखा जाता है तब जीनस का पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है और ये स्मॉल में ही होता है, और बाकी पूरे जन को हम दो अलग अलग नाम होते हैं, तो दोनों को अलग अलग से हम अंडरलाइन करते हैं. क्लियर? That's it. Any doubt, anyone? You can ask me. No sir. Okay. Can I end the class then? Yes sir. ओके सर. डाउट है तो पूछ लो. सर हाँ बोलो. सर स्पीसीज क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए. स्पीसीज हाँ सर. दो तीन चीजें याद रखोगे. स्पीसीज को पहले जैसे हमने देखा कि हम उसको सब स्पीसीज, रेस इसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन स्पीसीज का मतलब एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो खुद के अंदर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता. सो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज नोन एज अ स्पीसीज. ओके सर. एंड याद रखने लायक है कि स्पीसीज इज द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन. वो सबसे नीचे, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द क्लासिफिकेशन, द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी में भी और एवोल्यूशन में भी. एवोल्यूशन में भी स्पीसीज से ही एवोल्यूशन स्टार्ट होता है. टैक्सोनॉमिकल स्टडी में भी स्पीसीज से ही उसके ऊपर सब कुछ आता है. So that is the basic unit of classification, and it is the basic unit of taxonomy, and it is also the basic unit of evolution. Okay. Next class में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. Before I start with the next class, I'll give you a question paper. मैं अभी नहीं दूंगा. Next class में स्टार्टिंग के half an hour I'll give you a question paper. Around 20 questions रहेंगे. ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लो. जो ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो भी अच्छी तरीके से देख लो एक बार. और अगर प्रॉब्लम है ग्रुप में सेंड करोगे, पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड करोगे. आई डोंट वांट यू ऑल टू वेस्ट टाइम कि सर नेक्स्ट वीक में क्लास है तो नेक्स्ट वीक में आई विल आस्क यू. ऐसा नहीं करने का है. पूरा वीक है, चैप्टर डन है, तो अभी तुम्हारा रोल है कि यू पीपल गो थ्रू द मॉड्यूल दैट्स बीइंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू. तो मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके. हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस लगे, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. जो सिलेबस के अंदर है उसको सॉल्व करो, और उनमें से जो तुम्हें नहीं आ रहा है, you send the picture to me so that I can solve it for you in this 1 week, and by the time we are into the next class you are ready for the test. So half an hour का test लेंगे, फिर I will get into the next chapter. Is that clear to everyone? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Bye everyone.